Now class 12th we'll study the classifications based on the types of particles of dispersed phase. As you know, we were doing about different classifications of colloidal solutions, and we have come across many of them. Now we will concentrate on this multi-molecular, which is also known as your micromolecular colloids, right? So I'm writing my micromolecular colloids. So let's focus on the first part. Now in this, what happened, there are multi-molecular, means what happened, means small molecules, large number of molecules, they combined, and they combine in the disperse, because everything is happening in the dispersion medium. So these particles are present in the dispersion medium, so they are small in numbers, they are small in size, and they are large in numbers. And there basically you have to keep it in mind, their diameters of these particles should be one less than 1 nm, है ना, नैनोमीटर्स से लेस होना चाहिए. देन ओनली दीज पार्टिकल्स आर रिक्वायर्ड इन दिस. दे बेसिकली दे फॉर्म a quite range of colloidal solutions, and that type of colloidal solution is known as multimolecular colloids, right? They basically, what happen, they combined and they form an aggregated they form aggregates having size of colloidal range. ठीक है, तो छोटे होते हैं, आपको मालूम है कि colloidal size की जो रेंज होती है वो अराउंड आपकी 1 nm से लेके 1000 nm के बीच में होती है. ठीक है, और ये पार्टिकल्स क्या है, लेस देन. और कोलोइडल, अगर ये कोलोइडल सोल्यूशन बना रहा है तो इट्स मीन इट्स 1 nm से लेके 1000 nm तक की रेंज होनी चाहिए, और ये तो इससे लेस है. तो ये लोग इतना मिलके एक इस तरह का सोल्यूशन बना लेते हैं, कोलोइडल सोल्यूशन, जिनके पार्टिकल्स जब कोलोइडल सोल्यूशन में होंगे, देयर साइज विल बी अराउंड बिटवीन 1 nm से लेके 1000 nm तक होते हैं. तो दैट टाइप ऑफ सोल्यूशन इज नोन एज मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स. नाउ दिस मल्टीमोलिकुलर कोलाइड्स में जो ये स्पीशीज़ होते हैं, जो आपने ये जोड़े रखे हैं, जो सब्सटेंसेस हैं, दे कैन बी एटम्स, दे कैन बी मॉलिक्यूल्स. ठीक है, ये जो पार्टिकल्स आप बेसिकली क्या हैं, ये दीज आर डिस्पर्स्ड पार्टिकल्स. ठीक है, क्योंकि बिना मीडियम के तो काम होगा नहीं. ठीक, तो दे फॉर्म, एंड बेसिकली जब ये दोनों ये सब आपस में कंबाइंड होते हैं, दे कंबाइंड बाय मीन्स ऑफ वंडर वॉल्स फोर्सेस. ठीक है, वंडर वॉल फोर्सेस की वजह से ये कंबाइंड होते हैं. अब जैसे इसमें एग्जांपल है आपका गोल्ड सॉल है, या आपका सल्फर सॉल है. दे बेसिकली are the good example of multimolecular colloidal solution. I think this is clear to you. Now let's come to the macro one. Now let's talk about macromolecular colloids. देखो, जैसे डिस्पर्स पार्टिकल्स है, these डिस्पर्स पार्टिकल्स जो होते हैं, सब्सटेंसेस, ये भी वैसे ही कंबाइन करेंगे और कोलोइडल सोल्यूशन बनाएंगे जैसे मल्टी मॉलिकुलर में थे. बट द पॉइंट इज दैट दीज डिस्पर्स पार्टिकल्स व्हेन दे आर प्रेजेंट इन द डिस्पर्स मीडियम, their size are bigger comparison to your multimolecular colloids cases. And these particular dispersed particles, we have to keep it in mind that whenever they are present in the dispersed medium, they have a high molecular masses. Their molecular masses are bigger comparison to the particles that were present in the multi molecular colloids. So that thing you have to keep it in mind. So these particles, this scenario or the procedure is same. These are combining in the dispersed medium, and they are forming the colloids, which are known as macromolecular colloids. But the point is that their size are larger. They are larger molecules. The size are also large, and they have a high molecular masses. For examples, like starch is there. We all most of the लायोफिलिक जो कोलॉइड्स होते हैं, दे कम इन दिस कैटेगरी. ठीक है, लायोफिलिक वंस. सो लाइक स्टार्च इज़ देयर, प्रोटीन, जेलेटिन, सेलो. सिंथेटिक पॉलीमर्स में जैसे आपका पॉलीथीन है एंड पॉलीप्रोपिलीन है, आपने पॉलीमर्स पढ़ा है, सिंथेटिक रबर है, दे कम इन दिस पार्ट. ठीक है, डिस्पर्जन जो मीडियम है, सूटेबल सॉल्वेंट आप यूज़ कर सकते हो, उसमें ये पार्टिकल्स को आप आराम से बना सकते हो. नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़, now next we'll see the associate colloids or the micelles, and this you'll study in that part also. In sometimes it was there in the polymers or biomolecules. Now that is being deducted, but micelles is there.
एंड दिस इज़ बेसिकली दीज एसोसिएटेड कोलेडल्स ना, दे आर नॉर्मल इलेक्ट्रोलाइट्स। ये जब लो कॉन्सेंट्रेशन में आप इन्हें यूज़ करते हो तो दे वर्क एज अ नॉर्मल, मीन्स लो कॉन्सेंट्रेशन में अब अगर आप इन्हें यूज़ करोगे तो वर्क्स एज योर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, राइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की तरह ये काम करते हैं। बट व्हेन दे आर इन द हाई कॉन्सेंट्रेशन देन दे वर्क एज अ, दे शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ कोलॉइडल सॉल्यूशंस। तो कोलॉइड्स की तरह ये आपका दिखते हैं। बेसिकली व्हाट हैपन, दे जब ये हायर कॉन्सेंट्रेशन में होते हैं तो ये एग्रीगेट कर जाते हैं, ये एग्रीगेट करके एंड दे फॉर्म अ कोलॉइडल सॉल्यूशन। दिस इज़ द सिनेरियो ऑफ दिस थिंग। अब ये जो एग्रीगेटेड पार्टिकल्स जो होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये बेसिकली मिलके आपके मिसल्स बना लेते हैं। ये एग्रीगेट हो जाते हैं, ये पार्टिकल्स हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स हैं, ये बेसिकली दे एग्रीगेटेड टुगेदर, है ना, एग्रीगेटेड। एंड दीज पर्टिकुलर्स, ये जो एग्रीगेटेड पार्टिकल्स होते हैं, ये एग्रीगेटेड पार्टिकल्स को जब ये एग्रीगेट करते हैं तो हम एक टर्म इसको यूज़ करते हैं मिसल्स, राइट। दिस थिंग इज़ बीन वेरी इंपॉर्टेंट। नॉर्मली ये काफ़ी यूज़फुल होते हैं एसोसिएटेड कोलॉइड्स, जैसे कि हम बहुत ज़्यादा सोप में या डिटर्जेंट्स वगैरह में इसकी क्वालिटीज़ हम देखते हैं। दे आर फॉर्म बाय सरफेस एक्टिव एजेंट्स लाइक सोप एंड सिंथेटिक डिटर्जेंट्स, ठीक है। तो दीज एजेंट्स फॉर्म्स जो होते हैं वो मिसल्स बना लेते हैं। लेट्स सी द फॉर्मेशन ऑफ मिसल्स इन द सोप सोल्यूशन। अगर आप सोप का सोल्यूशन बनाएंगे तो उसमें कैसे मिसल्स बनेंगे उसको देखते हैं हम लोग। Now talk about misses formations in soap solution. Basically soap को हम RCONA से represent करते हैं। ये basically they are the sodium और the, आप कह सकते हो सोडियम और पोटेशियम salts of higher fatty acid होते हैं, ठीक है। सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स ऑफ हायर फैटी एसिड्स रहते हैं। अब बेसिकली इसमें ये जो आप इसमें बहुत सारे स्टीरिक एसिड से सॉल्ट बना हुआ होता है, आपका पामेटिक एसिड से बना हुआ, वो सब नहीं देख रहे हैं, बट बेसिकली वी आर फोकसिंग ऑन दिस पार्ट। सोप का हमने जनरल फॉर्मूला लिखा है RCONA, ठीक है। इसमें देखो ये आपको काफ़ी चीज़ दिखेंगी। एक R है, एल्काइल ग्रुप अटैच है जो कि लॉन्ग चेन एल्काइल ग्रुप है। एक CO है, कार्बोनाइल ग्रुप है, Na आयंस लगे हुए हैं। इसमें ये पोर्शन अगर आप देखते हैं RCO, अगर आप इसको देखेंगे तो इसको शॉर्टकट कर लीजिए RCONA। तो ये जब आप इसको ब्रेक करोगे तो RCO माइनस प्लस Na प्लस आपको देगा, ठीक है। दिस वे दिस विल गिव यू। अब ये RCO जो आपका पोर्शन है इसमें भी आपके दो पार्ट्स हैं। एक एल्काइल ग्रुप अटैच है जो कि लॉन्ग चेन एल्काइल ग्रुप है, और एक कार्बोनाइल ग्रुप है। इसमें ये दोनों पोर्शंस अगर आप देखते हैं ये हाइड्रोफिलिक होता है, यानी वाटर लविंग है या सॉल्वेंट लविंग है, और ये पोर्शन जो है ये हाइड्रोफोबिक है। और हाइड्रोफोबिक के वजह से क्या हो जाता है, ये वाटर रिपेलिंग हो जाता है। एक पोर्शन वाटर रिपेलिंग है और दूसरा पोर्शन वाटर लविंग है, ठीक है। अब इन दोनों का देखते हैं हाउ दे वर्क्स। सो what is the point when you are dipping anything in the soap solution, that how it's work, what is the point that we'll see. Now suppose this is the soap solution and आपने वाटर लिया और आपने सोप डाला। अब सोप में यू आर सीइंग दीज टू पार्ट्स, दिस इज़ वाटर रिपेलिंग एंड इट इज़ वाटर अट्रैक्टिंग। तो बेसिकली क्या होता है, जो ये CO ग्रुप होता है ये बेसिकली वाटर में रहता है, ये क्योंकि इट इज़ अट्रैक्टिंग व्हेन यू आर डिप्टिंग इन द वाटर, तो दे स्टे इन द वाटर। बट जो R पोर्शन होता है वो वाटर से भागता है, वो अलग भागता है उसकी तरफ से। तो इट इज़ फार अवे फ्रॉम द वाटर, होते वाटर में ही है लेकिन वाटर से वो डिफरेंट रहते हैं, बिकॉज दे यू नो दैट दे ऑल आर हैविंग वेरी डिफरेंट चार्जेस इन देम, राइट। सो बेसिकली R जो होता है, जो कि वाटर रिपेलिंग होता है, वो एक बंच बना लेता है, इकट्ठा सब पानी से भाग के अपना एक प्रॉपर बंच बना लेते हैं, ठीक है। ये इनकी कंडीशन होती है। तो लेट्स आई एम शोइंग यू हाउ दे आर फॉर्मिंग। और बेसिकली ये जो बंचेस होते हैं यही बेसिकली जो आपके क्या हो जाएंगे, जो बंच बना लेते हैं ये आपका मिसल्स बना लेते हैं। भाई वही वाली बात होती है ना, स्मॉल मॉलिक्यूल्स होते हैं, वो जब ये इनका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ जाता है तो ये एसोसिएटेड पार्टिकल्स बना लेते हैं जिसको हम कहते हैं मिसल्स। तो बेसिकली इन्होंने क्या बना लिया है, आपका मिसल्स बना लिया। सो दे फॉर्म्स द मिसल, दिस थिंग यू हैव टू कीप इट इन माइंड। अब सोप मिसल जो होता है वो आपका नेगेटिवली चार्ज कोलाइडल होता है,
इन विच द नेगेटिवली चार्ज ग्रुप इज़ दिस। अब इसमें जो अब बेसिकली क्या इनने अपना अलग बंच बना लिया है, और जो CO माइनस होते हैं वो तो पानी से अट्रैक्ट होते हैं, वो अपना एक अलग ग्रुप बना लेते हैं, है ना। दिस थिंग यू हैव टू कीप इट इन माइंड, ठीक है। अब बेसिकली होता क्या है, सपोज करो आपके पास ये पूरा पोर्शन है, आपने इन लोग की कहानी कर देख ली है कि वाटर अट्रैक्टिंग है और ये वाटर रिपेल करता है। तो आर जो होता है वो बेसिकली आपका, मैंने एक बंच आपको बना के दिया। अब होता है एक्चुअल में क्या है, ये अलग अलग तो टूटेंगे नहीं क्योंकि टूट तो ऑलरेडी चुके हैं। तो बेसिकली होता क्या है, जो आर के जितने पोर्शन होते हैं वो सेंट्रलाइज प्लेस हो जाते हैं, सब एक साथ ग्रुप बना लेते हैं अपनी दोस्ती, इस पोर्शन में आर लगा होता है, ठीक है। और जो CO नेगेटिव वाला पोर्शन है वो बाहर होता है, क्योंकि वो पानी से प्यार करता है तो उन लोग के साथ अपनी आराम से बॉन्डिंग बना चुका होता है, ठीक है। और इसी पे ही क्या होता है, आपका जो सोडियम आयन होते हैं वो लगे होते हैं। ये मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं आपको दूसरे तरीके से भी दिखाऊंगी, ठीक है। तो मिसल एक्चुअल किसने बनाया, आर ने बनाया है ना। तो ये अगर हम इसको और अच्छे से देखें तो ये सब आर वाले यूँ हैं, और ये सब यहाँ पे आप नेगेटिव कार्बोनाइल ग्रुप लगा दीजिए। जो देखो, क्योंकि देखो एक अंडरस्टूड वाली बात है, ये जो आर थे वो वाटर रिपेयरिंग ग्रुप थे, उनने कोई किसी से अट्रैक्शन नहीं, वो एक साथ अपना झुंड बना के एक साथ बैठ गए। और ये कार्बोनाइल वाटर अट्रैक्टिंग थी पानी के साथ, ये हैं। अब इनके साथ कौन अटैच्ड होगा, Na क्योंकि नेगेटिवली चार्ज है और पॉजिटिव नेगेटिव अट्रैक्ट करते हैं, तो ये अपने चारों तरफ Na का सराउंडिंग्स बना लेंगे। अब ये जो मिसल्स आपके बेसिकली बन चुके हैं, ये काफ़ी मॉलिक्यूल्स से मिलके बनते हैं, और आप अपने सोल्यूशन में बहुत ज़्यादा आप अपने मिसल्स को देखते हैं। अब एक्चुअली होता क्या है, जब आपने पानी में सोप डाला तो ये कंडीशन, सोप का घुलता हुआ कंडीशन ये बन गई। अब होगा क्या, अब आप इसमें अपने कपड़े डालोगे। व्हेन यू आर एडिंग द क्लोथ्स, मिसल बन चुका है यहाँ पे, सपोज करो मिसल्स आपके यहाँ बने हुए हैं, एंड द मिसल्स व्हेन दे आर फॉर्म एंड देन यू आर एडिंग योर डर्टी क्लोथ्स, देन व्हाट हैपेंड। भाई क्लोथ्स हैं उसमें गंदगी चिपकी हुई है, अब क्लोथ्स हैं तो उसमें ग्रीस भी होगा, डस्ट भी होगा, मड भी होगा, ऑयल भी होगा, वेट भी होंगी, कुछ भी चीज़, बहुत सी गंदगियाँ हो सकती हैं। तो बेसिकली ये तो अंदर पानी में मिसल बना हुआ है। अब गंदगी कहाँ जाती है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट, वेयर द इम्प्योरिटीज़ गोज, दैट इज़ वन ऑफ द मेन थिंग। अब पॉइंट क्या हुआ, तुमने ये गंदे कपड़े उठा के यहाँ डाल दिए। अब ये जो गंदे कपड़े जो डालोगे तो भाई उसमें गंदगी चिपकी है, वो गंदगी जो होगी वो निकल के, ये मिसल्स भी जो होंगे बेसिकली वो गंदगी से स्टिक हो जाएंगे, और यहाँ पे आपकी गंदगी आ जाएगी, ठीक है। इस जगह गंदगी आ जाती है, डर्टी, ग्रीसीनेस, ऑयल वगैरह जितना भी होगा वो मिसल के साथ कंबाइंड करेगा, ठीक है। इस तरह से सोप का एक्शन होता है, जब आपके कपड़े वगैरह जो भी हैं वो गंदे रहेंगे, उसमें ऑयल वगैरह, तो उसमें वो जो मिसल आपका ऑलरेडी आपने पानी, इसीलिए कहते हैं ना पानी में सोप को अच्छे से झाग बना लो, क्यों बोलते हैं, इसीलिए बोलते हैं। ये नहीं ऐसे ही डाल दोगे तो एक्शन नहीं होगा, इसलिए पहले पानी में डाल के आप आराम से सर्फ को अच्छी तरह से उसमें झाग बना लेते हैं, ताकि मिसल फॉर्मेशन हो जाए, वाटर और जो भी इनका कंडीशन चल रही है। अब आप उसमें जब अपना क्लोथ जा डालते हैं तो मिसल्स ऑलरेडी फॉर्म हो जाते हैं, वो जाके अटैक करते हैं डर्ट में, जो भी डर्ट आपके क्लोथ्स में लगी होती है, और वो ग्रीजी सब्सटेंस जो ये बीच में, क्योंकि ये देखो हाइड्रोफोबिक हैं तो पानी से तो अट्रैक्ट हो नहीं रहे हैं, लेकिन ये गंदगी को अट्रैक्ट करते हैं अपने, तो गंदगी यहाँ के आ जाती है, ठीक है। और ये मिसल्स ना, जब तुम इसको पानी से इस कपड़े को धोगे तो ये मिसल्स गंदगी को लेके रहेंगे, और ये वॉश्ड हो जाते हैं वाटर के साथ। तो दिस इज़ द एक्शन ऑफ क्लीनिंग एक्शन ऑफ सोप, और इवन द क्लीनिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट, बोथ आर द सेम, ओनली थोड़ा बहुत जो नाम हो जाते हैं डिटर्जेंट्स के वो चेंज हो जाते हैं। So this is clear to you. This way your how the micelle formation in a soap solution takes place, how the cleaning action of soaps takes place. Next one we'll see the preparation of the colloidal solutions, and you know that we have discussed about two colloidal solutions. One is the lyophilic salts and the other was lyophobic. Just now we will focus on the lyophilic salts, and then we'll focus on the lyophobic. So once we are talking about the lyophilic salts, you know first of all that lyophilic salts have a strong affinity towards the dispersed medium or the solvent part, right? So this is they are very easy going. You simply you add the dispersed medium, and the two ways are there, either you take it this dispersed particles you are using, and in that you are adding the dispersed medium.
Now this dispersion medium, basically this can be in a cold condition also and even in warm, but depend on the nature of the dispersed particle. So it's simply that कि you are just adding and easily when they come in contact with it they form the solution. For example I'm just telling you about the starch. जो आप solution यूज़ करते हैं लैब में वो सिंपल वो वाटर इंसॉल्युबल होता है कोल्ड कंडीशन में, लेकिन हम क्या करते हैं कि हम वाटर को थोड़ा हीट कर लेते हैं, गर्म करते हैं और उसमें हम स्टार्च डाल देते हैं, तब वो एक पेस्ट फॉर्म में बन जाता है, वो उसमें सॉल्युबल हो जाता है, तब हम उसमें कोल्ड वाटर डाल देते हैं एंड दिस इज सिंपली इज़ दैट कि इट इज़ वाटर सॉल्युबल हो जाता है वो. सो दिस वे यू कैन ईजिली. और अगर आपको वापस चाहिए अपना तो ये बहुत ईजी गोइंग होते हैं, रिवर्सिबल रिएक्शन है, आप हीट कर लो, पानी इवेपोरेट हो जाएगा और स्टार्च आपको वापस मिल जाएगा. तो दे आर वेरी ईजी, यू कैन रिकवर देम बैक. तो डिस्पर्स फेज और डिस्पर्स पार्टिकल व्हेन डिस्पर्स easily formed, right? Now we'll focus on the dispersion, this thing, one more thing. Now we'll focus on the lyophobic salts. So lyophobic salts जो होते हैं वो basically you know they are not at all have a good affinity or the love towards the dispersion medium. ठीक है, जल्दी में नहीं बनते, इनके लिए हमें स्पेशल टेक्निक्स लगानी पड़ती हैं, तभी हम lyophobic salts को आराम से बना सकते हैं. ठीक है, तो देर आर टू मेथड्स इन दैट. वन इज़ द डिस्पर्जन मीडियम, सेकेंड इज़ कंडेंसेशन और एग्रीगेशन मेथड. सो विल टेक वन एट अ टाइम. हम डिस्पर्जन मीडियम को ले रहे हैं. एक्चुअली होता क्या है इसमें, आप बिगर पार्टिकल्स के सब्सटेंसेस लेते हैं और आप उसको ब्रेक कर देते हैं, लेकिन डिस्पर्जन मीडियम ज़रूर होना चाहिए. मतलब पार्टिकल आप लोगे भाई उसके साथ आपको डिस्पर्जन मीडियम की भी ज़रूरत है, बट आपको ये ध्यान देना है कि जो डिस्पर्स्ड आपका फेज़ होता है उसके पार्टिकल्स जो होंगे वो काफ़ी बड़े होते हैं. डिस्पर्स फेस के जो पार्टिकल्स हैं वो आपके बिग इन साइज़ होते हैं. तो आप क्या करते हो, इनको तोड़ते हो, आप ब्रेक करते हो और आप फिर इसके आराम से कोलोइडल सॉल्यूशन. तो ये नहीं कि आपने हथौड़ा लिया और तोड़ दिया, दिस इज़ नॉट दैट इन दिस केस. एंड इवन द पॉइंट इज़ दैट कि ये लायोफोबिक सॉल्ट बना रहे हैं, ये स्टेबल नहीं होते हैं. तो इसमें एक बात याद रखिएगा कि आप स्टेबल करने के लिए इनके सॉल्यूशंस को आप इसमें स्टेबलाइजिंग एजेंट भी डालेंगे. ठीक है, यू विल ऐड द स्टेबलाइजिंग एजेंट सो दैट दिस कोलोइडल सॉल्यूशन प्रेसिपिटेट ना हो जाए, इसीलिए आप इसमें स्टेबलाइजिंग एजेंट डालते हैं. नाउ लेट्स फोकस ऑन द टेक्निक्स वन बाय वन. आई एम शोइंग यू फ्रॉम योर बुक एंड दिस इज़ द फर्स्ट टेक्निक जिसका नाम होता है आपका मैकेनिकल डिस्पर्जन मीडियम. ये दिस पर्टिकुलर डिस्पर्जन मीडियम, आपने वो चक्की देखी है, जैसे आटे की चक्की हम हाथ से लेते हैं, यहाँ पे वही मान लीजिए, उसी चक्की को कर लीजिए और ऊपर से खुला है. एंड दीज टू द पॉइंट हमने जो देखा है पुराने ज़माने में वो स्टोन्स की बनी होती थी, बट दीज आर ऑफ स्टील. दीज आर द स्टील दिस and what you do, you just there is a gap over here and these are the steel rigs, they are machines and these particular ये colloidal mill होती है and there is a gap also on the top so that you can put the particles over here. और यहाँ पे जो ये हैवी स्टील के जो व्हील्स लगे होते हैं या डिस्क लगी होती हैं, these have a gap. ठीक है, गैप इसीलिए रखा, अगर गैप नहीं रखोगे ऊपर से तुम पार्टिकल्स जो लार्ज पार्टिकल्स डालोगे तो वो पिस के कहाँ से निकलेंगे. ठीक है, तो दैट्स वाई दिस गैप इज़ बीन एडजस्टेड एंड इट इज़ मेंटेन. और ये बहुत हाई स्पीडिंग डिस्क होती हैं और ये बहुत हाई स्पीड से करीबन 1 मिनट में 8000 रेवोल्यूशंस मतलब ले सकती हैं. ठीक है, ये जो गोल गोल घूमने का तरीका है, तो इसमें 1 मिनट में करीबन 8000 टाइम्स ये रिवोल्यूशन लेती हैं. और आप क्या करते हैं, इसमें बड़े पार्टिकल्स इसमें डालते हैं एंड दे आर ग्राइंडेड अप, क्योंकि मशीनें हाई स्पीड से मूव कर रही हैं और ये फाइन फॉर्म में जितना पार्टिकल जो कोलोइडल सोल्यूशन का पार्टिकल होता है उतने साइज से ये बाहर निकल जाती हैं. ठीक है, अब इसमें पॉइंट क्या होता है कि आप इसी में चाहें तो आप डिस्पर्जन मीडियम भी अपना डाल सकते, जैसे वाटर डाल दिए तो आराम से आपका क्या है कि वो वाटर के साथ पिस के अपना निकल आता है. तो साइज़ डिपेंड करेगा कि आप क्या यूज़ कर रहे हो. तो इसमें आप बहुत से एग्जांपल है, सल्फ़र सॉल आप बना सकते हो, गोल्ड में का सल्फ़र सॉल ओवर हियर एंड यू कैन ऐड ग्लूकोज टू इट. है ना, ये ग्लूकोज को यूज़ करा जाता है एज अ डाइल्यूएंट की तरह फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सल्फ़र सॉल. सो आई थिंक दिस पॉइंट इज़ क्लियर टू यू. Now the next part is Briggs Arcs methods और electrical dispersion method. This is very important. यहाँ पे जैसे गोल्ड का सॉल है, सिल्वर है, प्लैटिनम है, उनके जब आप कोलोइडल सॉल्यूशंस बनाते हैं तो ये यूज़ करा जाता है. ठीक है,
नाउ दिस इज़ यू कैन टेक इट दिस पॉइंट। यहाँ पे ये देखो आपका ये कंटेनर है जिसके अंदर आपने डिस्पर्स मीडियम लिखा है। ये इलेक्ट्रोड्स जो आप बनाते हैं वो इलेक्ट्रोड्स आपको जिस भी मेटल की बनाने, जैसे गोल्ड का बनाना है आपको सॉल्ट, तो गोल्ड इलेक्ट्रोड लेंगे, प्लैटिनम लेना है तो प्लैटिनम का लेंगे, जिसका भी लेना है। एंड द रिएक्शन इज़ क्वाइट लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज़ बीन लिबरेटेड आउट, तो इसीलिए हम थोड़ा सा इसमें ये जो पूरा अपना कंटेनर है उसको फ्रीजिंग मिक्सचर में रख देते हैं ताकि वो ठंडा होता रहे। हाई टेम्परेचर पे इसे कनेक्ट कर लेते हैं और ना इसको बैटरी से कनेक्ट करके आप हीट करोगे तो जाहिर सी बात है ये जो इलेक्ट्रोड्स आपने यूज़ करी रखी है गोल्ड्स की, ये क्या होगा, ये हीट अप होंगे और ये इनके जो पार्टिकल्स हैं ये जो भी आप डिस्पर्स मीडियम लेंगे उसमें डिज़ोल्व होंगे। ठीक है, अब वो क्योंकि वो वेपर्स फॉर्म में आएंगे तो इसको यहाँ करने के लिए बार बार गर्म हो जाएगा, तो उसको ठंडा करने formed and these vapors are being condensed because you have kept this container in the freezing mixture, and you can make a suitable salt of your choice. Now we'll focus on the peptidization part, and in this I've just put over here what happened. You are using a suitable PPT and it should be freshly prepared. Suitable PPT has been used. In this you add an electrolyte. This particular electrolyte is added its help as a, or it acts as a, basically it's a peptizing agent. And this when you are adding this in this PPT you are adding this peptizing agent, it releases to give you a colloidal solution of your choice. Now this process of this thing, you are adding a freshly prepared PPT and by adding a suitable state of addition of suitable electrolyte, this entire process is known as peptization. There are plenty of examples that have been asked in peptizations, and one of the topic I am discussing, you know, that ferric chloride solution है ना, ferric chloride solution we are when we take it in a very small amount in precipitation of ferric hydroxide. सो फेरिक हाइड्रोक्साइड तुम्हें मालूम है कि उसमें हमने क्या करा, एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दी स्मॉल अमाउंट की, क्या थी वो फेरिक क्लोराइड थी। तो जो आपका फेरिक हाइड्रोक्साइड था, यू नो इट इज़ रेडिश ब्राउन इन कलर, तो आपका जो कोलोइडल सोल्यूशन जो होगा वो आराम से आपको फेरिक हाइड्रोक्साइड का मिल जाएगा। ठीक है, अब ये हमने क्यों करा कि फेरिक हाइड्रोक्साइड में हमने फेरिक क्लोराइड क्यों लिया, क्योंकि उनके आयन सेम थे, है ना, Fe+3+3+3 दोनों में था, इसीलिए हमने इसको यूज़ कर लिया कि वो आराम से वो कोई प्रॉब्लम ना हो या बहुत प्रेसिपिटेशन है कुछ और ना हो जाए, इसीलिए हमने Fe को चूज़ करा है। ठीक है, यू आर गेटिंग माई पॉइंट। दिस वे यू कैन मेक योर पेप्टाइजेशन, आप फिनोमेना को फॉलो अप कर सकते हैं, एंड देयर आर प्लेंटी ऑफ एग्जांपल्स दैट आर आस्क्ड। अब एक चीज़ और इसमें ध्यान रखनी है कि जो आपने जो कोलोइडल सॉल्यूशन बनाया है इससे, now what is happening, this basically happening because there is adsorption of Fe ions over ferric hydroxides particles that causes them to disperse into the solution due to the electrostatic repulsion between the similarly charged particles. This thing happens, so this you have to keep it in mind. Now we'll focus on the next method, condensation method or aggregation method. In this there are different अब aggregation का मतलब क्या होता है, अभी आपने पीछे बड़े पार्टिकल्स लिए उनको तोड़ के छोटा बनाया, अब ये कंडेंसेशन, ये छोटे पार्टिकल्स आप लेंगे, छोटे पार्टिकल्स को आप एग्रीगेट करा के बड़ा पार्टिकल बनाएंगे। तो उसमें अलग अलग मेथड्स हैं, जैसे केमिकल मेथड्स आपने जो आपके कोर्स में है उसमें आपका ऑक्सीडेशन मेथड है। आप किसी भी जिसका भी आप बनाना मांग रहे कोलोइडल सॉल्यूशन, तो कोई ना कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के साथ आप रिएक्शन कराएंगे, तब जैसे आपने कोलोइडल सॉल्यूशन सल्फ़र बनाया, वहाँ पे ही पीछे बनाया था, लेकिन आप ऑक्सीडेशन के थ्रू भी बना सकते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि आपको यू हैव टू टेक एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट फॉर दैट। जैसे आपने ब्रोमीन वाटर यूज़ करा रखा है या आप सल्फ़र डाइऑक्साइड यूज़ कर लिए, नाइट्रिक ऑक्साइड, तो ये याद करना पड़ेगा। फिर रिडक्शन मेथड है, जैसे आपने पीछे गोल्ड, सॉल्ट और सिल्वर, प्लैटिनम सब बनाए, लेकिन आप रिडक्शन के थ्रू भी यूज़ कर सकते हैं। इसमें आप कोई भी सूटेबल रिड्यूसिंग एजेंट आप यूज़ कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे गोल्ड क्लोराइड आपने यहाँ लिया है तो उसको आपने स्टैनस क्लोराइड के साथ कराया है। ठीक है, तो आपको गोल्ड का सॉल्ट मिला है और स्टैनस जो आपका स्टैनिक क्लोराइड आपको अलग फॉर्म हो गया है। ठीक है, फिर हाइड्रोलिसिस इज नॉट देयर इन आवर कोर्स, देन वी हैव अ डबल डिकम्पोजिशन पॉइंट, तो इन दैट ऑल्सो यू कैन फॉर्म योर आर्सेनिक सल्फाइड सोर्स एंड बाय दिस रिएक्शन यू कैन डू, सो these are the important methods, and we can use one more method also, physical method, वो भी है हमारा। Now physical method you can use in this exchange of solvents method is being applied
और आप इसको सॉल्वेंट्स के एक्सचेंज करा के आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बेसिकली क्या होता है, एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट। आप इसमें दो सोल्यूशन लेंगे, एक में सॉल्वेंट जो आप एक ट्रू सोल्यूशन पता है ना आपको, ऐसा सोल्यूशन होता है जहाँ पीपी जो आपका जो सॉल्वेंट मिल जाते हैं और वो ईजिली मिसिबल होते हैं, वो कम्प्लीटली सॉलेबल होता है ना। और एक सोल्यूशन आप दूसरा भी ले लीजिए, वो क्या हो, इनसॉल्युबल स्टेट। उसमें एक बात ध्यान दे के चलनी है कि सॉल्वेंट आपस में मिल जाएंगे, लेकिन जो सॉल्यूट पार्टिकल्स होंगे वो आपस में नहीं मिलना चाहिए, ठीक है। दो सॉल्वेंट का एक्सचेंज होना मतलब दो सॉल्वेंट सोल्यूशन आप ले रहे हो तो दोनों सॉल्वेंट आपस में एक दूसरे से मिसिबल हो जाए, लेकिन सॉल्यूट पार्टिकल्स मिसिबल ना हो, क्योंकि यहाँ पे मेथड है आपको सॉल्वेंट्स को मिसिबल कराना है, ना कि सॉल्यूट को मिसिबल कराना है, ठीक है। तो दैट थिंग, तो एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट्स जो होता है वो आपको कोलिडल सोल्यूशन ऑफ द रिस्पेक्टिव सॉल्यूट आपको दे देता है। जैसे यहाँ पे एक मेथड दिया रखा है कि आपको सल्फ़र और फॉस्फोरस बनाना है, तो सल्फ़र जो है वो अल्कोहल में सॉल्युबल होता है पर वो वाटर में लेस सॉल्युबल होता है, ठीक है। तो आपने अल्कोहल सोल्यूशन ऑफ सल्फ़र लिया, उसको पोर्ट कर दिया वाटर में, तो आपको कोलिडल सोल्यूशन ऑफ सल्फ़र मिल गया। सो दिस इज़ द मेथड विच यू हैव टू यूज़। ये नेक्स्ट मेथड याद मत करना, दीज मेथड्स आर देयर विच यू हैव टू फोकस। देखो इसमें जो पीछे वाले तीनों मेथड्स थे वो इंपॉर्टेंट है, उसमें हमेशा पूछा जाता है। पेप्टाइजेशन तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसमें रीजनिंग आती है, ठीक है। So please don't ignore that dispersion method is very important for the lyophobic colloidal solutions.